आई फील नहीं, भगवान है, थोड़ा स्लो देता है, थोड़ा टेस्ट करता है. बड़े इवेंट्स जो होते हैं हमारी लाइफ के, they are all triggered by this soul connection, soul contracts. I remember walking on the stage with that number card कि hi, my name is Flora, I'm whatever, these are my hobbies. And there was pin drop silence in the audience because सब लोग ये सोच रहे हैं ये इतनी मोटी लड़की ये क्या सोच के ब्यूटी कॉन्टेस्ट में आई है. I love astrology. I believe I follow all that you keep posting about astrology. When you experience that pain, I think एक spiritual evolution होता है. And the message of that film ना, वो स्त्री है, वो प्यार और इज्जत की भूखी है, तुम उसे प्यार और इज्जत दो, वो तुम्हारी रक्षा करेगा. I said this is my life story. And when I reached the peak of my career, I fell in love with someone. तो all those controversies जिसमें आप रहीं, जिसकी वजह से लोगों ने कई सारी चीजें पढ़ी, जो मेरा domestic violence वाला केस था, those 7 years there was a lot of character assassination. उस रात सिर्फ 2 लोग थे, him and me and God. Then I remember that night जब the last violent night of my life, and I know this person would have killed me that night. अगर भगवान आपको थोड़ा 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 करके भी दे रहा है, वो नहीं भी दे सकता ना चाहे तो, वो थोड़ा थोड़ा भी दे रहा है ना, किसी रीजन से दे रहा है. ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः, गोविन्दाय नमो नमः, गोविन्दाय नमो नमः, गोविन्दाय नमो नमः. वेलकम टू द TVS शो द वेदा स्पीक. यहाँ हम बात करते हैं स्पिरिचुअली एम्पावर्ड इंडिया की, यानी कि आध्यात्मिक भारत की. हमारे साथ यहाँ पे जुड़ते हैं ऐसे मेहमान, ऐसे अचीवर्स जिनकी शोहरत के पीछे ना सिर्फ उनकी मेहनत है बल्कि उनका स्पिरिचुअल बिलीफ भी. आज हमारे साथ स्टूडियो में है बहुत ही पॉपुलर एक्ट्रेस जिन्होंने साउथ की सारी भाषाओं में काम किया है. नरसिम्हा नायडू जैसी बहुत बड़ी फिल्म की लीड हीरोइन रही है वो. पंजाबी फिल्में की हैं, हिंदी फिल्में की हैं, बहुत सारे कमाल कमाल के वेब सीरीज की है. मेड इन इंडिया, इनसाइड एज, सिटी ऑफ ड्रीम्स. अभी अभी आपने उन्हें बहुत रिसेंटली बिग बॉस तेलुगु सीजन 9 में देखा होगा. और मेरी पहली इंडिपेंडेंट फिल्म की लीड हीरोइन की बात कर रहा हूं मैं, फ्लोरा सैनी. चलिए उन्हें वेलकम करते हैं. वेलकम फ्लोरा टू द शो. सो हैप्पी टू हैव यू हियर. Thank you so much. It feels so good to be finally here, and I feel so happy to finally see you do this. Thank you so much, and thank you so much. We both have very fond memories of Love in Nepal when we worked. Sonu Nigam was the lead hero of the film. It was a lot of fun. We shot in Nepal and we shot in Mumbai. And इसी टाइम पे इसी दिसंबर है ना? Yes, December के बाद. And in middle of Annapurna Hills there. Yes. You know, it was so amazing. What a lovely experience. Rajat Da, our director, unfortunately, is no longer with us. God bless his soul. But it was a wonderful experience, and you were the lead actress of my first film that I wrote. And you were the backbone of my first lead Hindi film, and what a lovely. I remember seeing you through so many phases. Yeah. And शादी तो हो गई थी आपकी. I think your kids were born in front of me. Kids. They have grown. Yes. Everything has happened in these many years. The film released in 2004, and my kids were born in 2004. You were just married. I was married in 1999. Okay. But we had children, my twins, in 2004. Wow. The time when the film released, So it was a big year for me. Yeah. My first film, मेरी पहली बड़ी film की release थी, और मेरे बच्चे. Yes. So very fond memories of you, and I remember your mom used to always be there, is still always there with you whenever I see you. हम जब मिलते भी हैं उसके बाद भी, and वो साथ रहती हैं. It was such a wonderful experience to spend time with her also. मतलब हमेशा ही बहुत मजा आता है जब मैं मिलता हूँ आपको. And हमारी दोस्ती, हमारे association, connection has survived almost 20 years. Yes. We have been in touch since then. Yeah. 2004 से 2003 से लेके. I think मैं जितने लोगों को जानती हूँ बॉम्बे में, सबसे ज्यादा if I know anyone and if I think कि यार मैं सबसे ज्यादा लंबा किसको जानती हूँ, you're the only name, you
Sonu Nigam, these are the two names. Rajat हाँ. is not there, but you guys are the only names I have जो इतने टाइम से जानते हैं. But you, more than anybody, हम लोग बातचीत करते रहे, मिलते रहे. We kept on bumping into each other. So I think you have, and I've seen you through all your phases. अलग बात है, but through your, like you have seen my life. I think आपका जो एक बहुत हिट आपने सीरियल लिखा था, which was very, एक हसीना थी. एंड मुझे नहीं पता था कि आपने लिखा है स्टार्टिंग में, बट व्हेन आई डोंट नो व्हाई आई सॉ इट, बिकॉज इट वाज नॉट द प्रॉपर, वो बोलते हैं ना सीरियल जैसा नहीं था, बहुत डिफरेंट था. एंड आई वाज सीइंग दैट एंड आई सॉ योर नेम समीर, और आई सेड अरे, बिकॉज ओनली यू कैन डू इट. थैंक यू सो मच, दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू. एंड our show is about spirituality, जैसा आप जानते हो, and I'm so happy that I got a chance to call you for the show, and so graceful of you to accept the invite and have you on the show. तो थोड़ा सा बात करते हैं आपके जर्नी के बारे में. मतलब how did you when did you decide to become an actress? Was it a childhood thing or while growing up ऐसे evolution wise thought का? तो 2-3 चीजें हैं. एक तो मैं ये मानती हूँ कि आई एम एन एक्टर बाय चांस, नॉट बाय चॉइस, क्योंकि फैमिली से कोई भी ये प्रोफेशन में है नहीं. जी. एंड यू आर फ्रॉम एन आर्मी बैकग्राउंड. आर्मी बैकग्राउंड. माय नाना वाज इन द एयर फोर्स, अंकल्स, फ्रेंड्स, मतलब सब लोग आर्मी में ही गए हैं, पापा. एंड बहुत ही अलग लाइफ है. उस टाइम आई डोंट थिंक दिस वाज कंसिडर्ड एज अ प्रोफेशन ऑल्सो. मैं कभी अभी पापा को ये जाके बोलूँ मेरे को एक्टर बनना है, तो पता नहीं उनका क्या रिएक्शन होता. सो बहुत क्लियर था कि भाई स्कूल खत्म हो गया, कॉलेज जाएंगे, जॉब ढूंढेंगे. सो दैट इज व्हाट आई हैड फिक्स्ड इन माय माइंड. एंड बिकॉज हम स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हैं, तो आई थिंक मैं ये आज व्हेन आई टॉक टू पीपल एंड आई टेल देम कि लाइफ में आप कितनी प्लानिंग कर लो, जो लिखा है लाइफ की स्क्रिप्ट ऑलरेडी लिखी गई है. Correct. और हर एक पेज जो हर एक दिन वो एक पेज के जैसा है और सब कुछ लिखा हुआ है. सो यू जस्ट हैव टू लिव इट एंड थिंग्स विल कीप हैपनिंग. और जहाँ आपका पहुंचना लिखा नहीं, तो बॉम्बे में, मुंबई में आना, दिस वाज नॉट, ये तो मैं भी कभी, मैं और मामा दोनों बैठ के सोचते हैं यार ये कैसे, लाइक वो चांस ही नहीं था. ये स्कूल में मैं बहुत मोटी थी. बहुत ज्यादा मोटी थी. एंड क्योंकि सन केयर, स्किन केयर क्या होता है वो तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था हमारा. सो आई वॉज वेरी डार्क. खाने का कुछ हेल्दी ईटिंग था नहीं, जो भी जंक फूड खा रहे हैं. आई हैड लॉट्स ऑफ पिंपल्स, आई हैड ब्रेसेस इन माई टीथ. सो आई यूज्ड टू बी वो लड़की जो क्लास के बॉयज के लिए सबसे प्रिटीएस्ट गर्ल का नंबर लेके आती थी कि एक समोसा देंगे तेरे को, उसका नंबर लेके आना. सो आई वाज दैट गर्ल इफ आई सी. और बिल्कुल लाइक सॉक्स पुल्ड अप, क्योंकि ममा वाज अ टीचर इन माय स्कूल. अच्छा. एंड उसका भी ये है, जैसे आपने बोला कि मामा और मैं बहुत क्लोज है, मतलब बहुत ज्यादा क्लोज है, बीइंग द ओनली चाइल्ड एंड द ओनली डॉटर. इट्स गुड एंड इट्स बैड क्योंकि बहुत प्रोटेक्टिव, ममा इज टू प्रोटेक्टिव. तो जब मैं स्कूल जाने लगी, पापा वाज पोस्टेड इन उधमपुर, जम्मू एंड कश्मीर. तो मैं उनका हाथ नहीं छोड़ती थी, रोने लग जाती थी जैसे ही वो मुझे स्कूल ड्रॉप करने जाते थे. नर्सरी में होंगी तो शी वुड सिट आउटसाइड द स्कूल. मेरे क्लासरूम, मतलब अगर मैं डेस्क से ऐसे पीप करूं तो मुझे मम्मा बाहर दिखने चाहिए. एंड शी यूज्ड टू सिट वो आई व्यू में स्कूल के बाहर. सो जो वहाँ, इट वाज अ कॉन्वेंट स्कूल, तो वहाँ पे जो नन्स थी उन्होंने देखा मम्मा को, बोला आप यहाँ बैठते हो, आप क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते स्कूल एज अ टीचर. एंड सो it not just my trajectory but my mom's life trajectory also evolved through me I think. तो मम्मा ने एज अ टीचर शी जॉइन. तो हम दोनों जब से मैंने स्कूल ज्वाइन किया और जब तक मैंने स्कूल छोड़ा, एक साथ स्कूल जाते थे और एक साथ ही वापस आते थे. सो वी आर लाइक, इवन 12th में जब मुझे बंक करना था स्कूल, बिकॉज इट वाज अ थिंग, बंक मारेंगे. आई यूज्ड टू टेल हिम मम्मा आज बंक करना है. ठीक है मैं गाड़ी लेके आ जाऊंगी. सो शी वुड ड्रॉप अस, मी एंड माई फ्रेंड्स. एंड देन आई यूज्ड टू टेल हिम मम्मा बंकिंग में पेरेंट्स को नहीं पता होना चाहिए ये कैसे बंकिंग है. अगर मैंने किताबें जो पढ़ी हैं तो मुझे लगता है कि पास्ट लाइफ में शायद ये मेरी डॉटर रही हो, शायद ये मेरे
हस्बैंड रही हूँ, क्या पता, बिकॉज वी आर लिटरली सोलमेट्स. I agree because past life theory की जब आप बात कर रहे हैं ना, हम लोग हमेशा जिनसे मिलते हैं हाँ जी. बहुत खासकर जब बहुत क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं जिन लोगों के साथ, जो लोग आपकी लाइफ को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, इम्पैक्ट करते हैं, दे आर कॉल्ड सोल क्लस्टर्स, वाओ. है ना. तो खासकर जब लाइफ लेसन्स एक्सचेंज होते हैं, चाहे माँ बेटी के बीच में हो, दोस्तों में हो, कॉलीग्स में हो, हस्बैंड वाइफ की हो, या किसी भी किस्म का रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता, डेफिनेटली देयर इज अ पास्ट लाइफ एसोसिएशन जहां पे कोई लेसन बाकी था टू बी Yes. एक्सचेंज बिटवीन दोज टू सोल्स. तो इस जन्म में व्हेन वी टेक अ लाइफ, वी आर born अराउंड दो सोल क्लस्टर्स, या उनसे मुलाकात होती है द राइट जंक्शन, द राइट टाइम इन लाइफ, ताकि वो सोल लेसन जो बाकी रह गया था वो एक्सचेंज हो सके. But that is with good and with bad गुड connections. एंड विद बैड ऑल्सो. सो फॉर एग्जाम्पल, कार्मिकली अगर आपने किसी को कभी किसी लाइफ में हार्म किया है और बहुत ही ब्रूटल हार्म रहा होगा, तो वो सोल आपकी लाइफ में यहाँ पे आएगा आपको वो पनिशमेंट देने के लिए, Correct. और आप वो सीखोगे उस Yes. सोल से. सो स्पेशल जो बड़े इंसिडेंट्स होते हैं हमारी लाइफ, बड़े इवेंट्स जो होते हैं हमारी लाइफ के, Hmm. they're all triggered by this soul connection, soul contracts, as we call Yes. in the language of spirituality. The fact that आप और मैंने और आपने लव इन नेपाल में काम किया 2003 में, आज 2025 22 साल हो Yes. गए हैं. We have remained connected, associated, met at various junctures. There is a soul connection between us two. Yes. क्योंकि ऐसा कुछ एक्सचेंज बाकी रह गया था हमारे बीच. Maybe it was meant that we will work together as a team in that film, that जिस दिन कभी ये पॉडकास्ट मैं करूंगा, Yeah. I will have the opportunity of having you as my guest here. तो you never know कि क्या कौन कैसे contribute करेगा आपकी लाइफ में. And it's a very beautiful contract of soul clusters, soul Yeah. contracts. एंड आपकी मॉम और आपके बीच में श्योरली सोल कॉन्ट्रैक्ट है, है ना? वो दिखता है विजिबली. Yes. मैं जितनी बार मिला उनसे, आंटी से, सच अ वंडरफुल पर्सन, एंड एज यू राइटली सेड, वेरी वरीड अबाउट यू, ऑलवेज कंसर्न्ड अबाउट यू. आप जब बिग बॉस में थी वहां पे और नॉमिनेट होती थी, Yes. फ्रीक्वेंटली आई रिमेम्बर शी यूज्ड टू कीप मैसेजिंग वोट फॉर फ्लोरा, वोट फॉर फ्लोरा आता था बड़ा. एंड ऑफ कोर्स वी डिड वोट, वो मिस्ड कॉल दे देके. तो बड़ा ब्यूटीफुल कनेक्शन है. सो सॉरी टू कट यू, तो आप एक्ट्रेस कैसे बनी आप? हाँ, so from the time that I started school to the time that I finished school, she was a teacher in my school. तो ममा एक्चुअली जो मेरी क्लास टीचर्स थी उनको बोलती थी कि आई वांट हर टू, क्योंकि जब आप मोटे बच्चे होते हो ना, हाँ. तो आप थोड़े काफ़ी बॉडी कॉन्शियस हो जाते हो एज यू आर इन योर टीन्स, एंड देन मेटल है, दांत पे ब्रेसेस लगे हुए हैं. तो आई वाज अ गुड स्टूडेंट, पर मैं पीछे बैक बेंचर, छुप के रहना, हाथ नहीं उठाना, पूछा जाए उतना जवाब दे देना, ज़्यादा अटेंशन नहीं चाहिए. तो ममा यूज्ड टू टेल माय क्लास टीचर्स कि इसको थोड़ा, मैं चाहती हूँ कि स्टेज पे कुछ भी डांस हो, स्किट हो, शी शुड पार्टिसिपेट. और मुझे इतना डर था फ्रॉम ऑडियंस फियर बोल लो, कि डिबेट्स, दे विल जज यू, दे विल जज मी, मैं गलत कर दूंगी. और होता भी ऐसा था. Even if it's a group dance, I will always fall on stage. So I remember starting off as कोई प्ले था, मैं पेड़ बनी हूँ कि भाई मुझे डायलॉग वाले मत दो, मैं पेड़ बनी ठीक हूँ. फिर एक स्नो वाइट का शो था, they made me Snow White's mom, and I was so upset कि I want to be Snow White, I don't want to be Snow White's mom. So all of that. उसके बाद my 12th खत्म हुआ, and Papa was posted in Calcutta. So we joined him in Calcutta, and वहाँ कुछ करने को नहीं था, क्योंकि बोर्ड्स के रिजल्ट जब आएंगे तब कॉलेज ज्वाइन होगा. एंड what to do. So Calcutta में I think cable TV had not really come in full force, and phones भी नहीं थे. तो एंटरटेनमेंट के लिए क्या करें, हमारा वहाँ पे कैलकाटा में ना एक्चुअली बहुत सारे छोटे छोटे क्लब्स हैं. क्रिकेट क्लब, आर्मी क्लब तो हर जगह है ही, एंड दे कीप हैविंग तंबोला नाइट्स, फैशन शोज वर अ बिग थिंग दैट टाइम. yes, I remember. Especially after Sushmita and Aishwarya put it on the world map. एक club में there was this some contest, beauty contest. So mama and another auntie in the regiment, they both got together कि
वहाँ पे ब्यूटी कॉन्टेस्ट है एंड यू पार्टिसिपेट। आई सेड मुझे देखा आप लोगों ने मतलब मैं अभी भी मोटी, नहीं बड़ा मजा आएगा। एंड तो उस देयर वाज सम 50 years of independence का थीम एंड मम्मा डजंट वेयर साड़ीज, तो आंटी ने साड़ी दिया, फेडेड ब्लाउज, वो मतलब इट वाज अ मेस। एंड आई रिमेंबर वॉकिंग ऑन द स्टेज विद दैट नंबर कार्ड कि हाय माय नेम इज फ्लोरा, व्हाटएवर, दीज आर माय हॉबीज। एंड देयर वाज पिन ड्रॉप साइलेंस इन द ऑडियंस बिकॉज सब लोग ये सोच रहे हैं ये इतनी मोटी लड़की ये क्या सोच के ब्यूटी कॉन्टेस्ट में आई है। पर मेरे लिए यस इट वाज थोड़ा सा, बोलते हैं ना, इंसल्टिंग तो नहीं बोलूंगी, बट आई फेल्ट ये मैं, हाँ, बट व्हेन आई सॉ द अदर गर्ल्स सो प्रिटी, मतलब द ड्रेस देख लो, फिगर देख लो, बाल, मेकअप, एवरीथिंग ऑन पॉइंट, एंड आई वाज लाइक वाओ दे लुक सो प्रिटी। फिर वो खैर राउंड खत्म हो गया। Then there was another contest. So again these ladies said एक और contest है। मैंने कहा मेरी insult काफ़ी हो चुकी है, मुझे बिल्कुल ज़रा शौक नहीं है दोबारा अपनी insult कराने का। So ऐसे नहीं time है, we'll prepare you. So we worked on the costume, कैसे चलना है मुझे सिखाया। They put me on a diet, so I lost little weight but not much. Second में भी ऐसा ही हुआ, I didn't get through but I was better than my first. फिर एक दो और मैंने ब्यूटी कॉन्टेस्ट दे फोर्स मी बिकॉज इनको एंटरटेनमेंट चाहिए था एंड आई वाज दैट। तो देन आई थिंक फ्रॉम द 5th और द 6th कॉन्टेस्ट आई हैड लॉस्ट वेट एंड आई कुड आंसर वेरी वेल, क्योंकि इतने टाइम में मैं क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रही थी, पर वहाँ पहुँचेंगे तब जवाब देंगे। सो 5th या 6th कॉन्टेस्ट था। फ्रॉम देयर ऑन आई स्टार्टेड कमिंग द टॉप 10, then top 5 and started winning. And then we came to Delhi because I think मेरा board का result आ रहा था, and Delhi and Bombay are the two biggest army clubs. So वहाँ पे Delhi में there was a May Queen contest, May Queen ball. There I participated. I was the first runners up. It was huge. Guests भी बहुत, Sylvie and Rohit Bal, all these people were the judges. तो वहाँ पे I was first runners up and somebody asked me, would you like to do a movie? So I asked my dad. तो पापा ने बोला देखो ये हॉबी के जैसे ठीक है बट पढ़ाई नहीं छूट सकती है, एंड अगर तुम्हें करना ही है go to Bombay, do a course and then you decide because somebody's money is riding on it. So we came to Bombay. I joined Namit Kishore Kapoor's Acting Institute, 4-month course. I was into my 2nd month when I got my first Telugu film. Because the hero of my first film, he was an ex-student of Namit sir, and they were looking for a fresh face. Which was this film? Prema Kosam. They were looking for a fresh face, and क्योंकि मैंने जितना भी weight lose किया, still I had baby fat, and South में उस time they liked girls. Yes. So everything just works out when it has to. When it has to. And so I got selected. I was doing my first film, and हम जहाँ ठहरे थे that was opposite Mr. E.V.V. Satyanarayan's house. So he would see me come and go and he offered me a film. बोला कि ये तो चलो रिलीज होती रहेगी, आप फर्स्ट मेरी फिल्म कर लो। These guys said नहीं हम लेके आए हैं, and learning Telugu was a task क्योंकि लाइफ में कभी बोला ही नहीं है ना सुना है, my tongue wouldn't roll. So the first people who called me, they that Rapidex 30 days में तेलुगु पढ़ना सीखे and all of that I've been through. So they said नहीं हम लेके आए हैं तो हम ही launch करेंगे. So EVV sir offered me मेरी second film Chala Baundi. First film released, it did okay. Second film actually worked very well. EVV sir had a very good track record. People used to come to watch his films, and that I played a mad girl in that film. Okay. So that got me a lot of critical acclaim. फिर जब वो फिल्म जैसी रिलीज हुई, like this, there was no looking back. फिर एक के बाद एक फिल्में होती रही. And when I reached the peak of my career, I fell in love with someone. और I think 2000 वहाँ से 2000 में मेरा करियर शुरू हुआ. Till 2004 we did Love in Nepal. Love in Nepal के रिलीज के बाद came a gap in my career. मैं बहुत बार सोचती हूँ कि अगर वो गैप नहीं होता, would things be different? Because I was on my way like this
तो वुड थिंग्स बी डिफरेंट? फिर मेरे पास एक ही आंसर रहता है कि नहीं, वो वैसा ही होना लिखा था. Planets, I firmly believe, I love astrology. I believe, I follow all that you keep posting about astrology so much. And वो वैसे ही लिखा होना था. There were things that I was supposed to learn. And मिस्टर अमिताभ बच्चन का मैंने एक कहीं सुना था कि when you anything that goes up has to come down. And when you're on your way down, no, sorry, when you're on your way up, be very nice to everyone, because you will meet all those people on your way down, and how you behaved that time is what is going to. And I'll tell you what happened. जब मैं अपने पीक पे थी तो बहुत सारे लोग जो कहानियाँ लेके आते थे ना, यूज्ड टू से नहीं मुझे ये नहीं करना, नहीं मुझे ये पसंद नहीं है. नॉट नोइंग, लाइक एज अ यंग किड जो आउट ऑफ स्कूल, इट्स नॉट एटीट्यूड, इट्स जस्ट मे बी मैं हिंदी फिल्में ज़्यादा देखती थी तो मुझे वो फिल्में समझ नहीं आ रही, या वो रोल्स थोड़े रेपिटेटिव हो रहे थे. सो देयर वर फ्यू पीपल जिनको मैंने बोला कि नहीं मुझे ये कहानी नहीं करनी, मुझे वो नहीं कहानी नहीं करनी. एंड देन केम अ टाइम जब मैं वो जो मेरे लाइफ का बैड पैच है उससे बाहर निकली, एंड आई वांटेड टू गेट बैक टू वर्क, एंड आई हैड टू कॉल ऑल दोज पीपल बैक एंड से कि प्लीज़ मुझे काम चाहिए. वो जिस काम को मैंने मना किया था मैं वो भी करने को रेडी थी कि डजेंट मैटर, आई हैव टू वर्क बिकॉज आई हैव टू पे बिल्स, आई हैव टू पे कोर्ट फीस, लॉयर फीस, वो सब देना है. तो एनीथिंग आई वुड, एंड आई थिंक दैट वाज वेरी हम्बलिंग. दैट टॉट मी कि भाई इससे ज़्यादा, बिकॉज आई सेड नो टू इट बिकॉज आई डिडंट लाइक इट, एंड टू गो बैक एंड से कि नहीं अब मैं वो भी करने को रेडी हूँ. मैंने हमेशा भगवान को यही बोला है कि वो वाला स्टेज मुझे नहीं देखना आज जो है. और अगर मना भी करना, खैर मना, यू कांट से येस टू एवरीथिंग, सम थिंग्स, certain things obviously, है ना, बट yes, I don't want to ever be there where I have to say yes to things that I'm not getting a that your understood conscience doesn't feeling. allow Yeah. you to do. No, but quite an incredible journey from an overweight girl to the gorgeous person sitting here in front of us. I remember you in Love in Nepal, and आपको मैंने जब first narration दी थी, I said, मेरा friend Vicky था, if you remember. Yes. I said, Vicky, what a gorgeous girl, what a beautiful actress, and you got frozen in time. You are the same now also. Oh. Yeah. So no, it's a journey, and I'm sure that girls who are watching you, people who are watching you, your fans that are watching us, will appreciate you being so humble, you being so upfront about your journey. Yeah. I think the biggest, जो सबसे courageous बात होती है ना, जब हम अपनी follies को भी accept करते हैं, embrace करते हैं, अपनी गलतियां भी embrace करते हैं, वो बहुत बड़ी बात होती है. And I think that is how a person becomes spiritual. When you go through pain, when you go through difficulties, when you go through a roller coaster, जब आप दुनिया भर के सवाल उठाते हो अपने अस्तित्व पे, अपने purpose of life पे, आप क्यों पैदा हुए, is this you were born, is this what you were born for? No. Yes. And when you start questioning things, and when you experience that pain, I think एक spiritual evolution होता है. Yes. So as a child or as a young girl growing up, you may have had a different spiritual belief. और अब कुछ और spiritual belief होगा आपका, belief system change होगा. तो उस बारे में as a child how were you, मतलब घर में माहौल कैसा था? Was it a spiritual oriented माहौल that you were in, और friends वैसे थे, या अब कैसा है? So like I said कि पापा आर्मी में थे, so in a way सारे फेस्टिवल्स मनाते थे. बिलीफ वॉज पैन, सब कुछ ही मनाना है. बट घर में अगर देखें तो माई फादर इज लिटिल मोर, सुबह अगरबत्ती जलाते हैं, प्रे करते हैं. उनका गाड़ी चलाने से पहले ही स्टॉप्स, ही प्रेज, देन गाड़ी ऑन होती है. दैट्स माई डैड. माई मॉम, शी बिलीव्स देयर इज सम, कोई एनर्जी है, एंड जो अच्छा करो तुम्हारे साथ अच्छा होगा, बुरा मत करो किसी का, बस उनका ये है. शी डजंट रियली प्रे और गो टू, मे बी शी प्रेज इन हर हार्ट, बट आई हैव नेवर सीन हर डू ऑल ऑफ दैट और गो टू. क्योंकि वो तो एक वो that is religious, that is religion, yes, and dharma and all of that. But
spirituality is beyond Correct. religion. Yes. You know, हम pray करते हैं, अगर pray ना भी करें, if you are, which I know for your mom for sure and you for sure, that you are a kind and a good person from inside. I think that also is a very big aspect of spirituality. Because mama always taught me कि there is karma. बाकी है नहीं है, because you know, जितने लोगों से मैं मिली हूँ, बहुत लोगों को मैंने देखा है कि I don't know if it's right to say it, but बहुत ऐसे लोगों को देखा है जो बहुत पूजा पाठ करते हैं, बहुत मतलब बहुत, और वो इतना करते हैं कि ऐसा माइंड में आता है कि आप इतने क्या पाप कर रहे हो कि आपको इतना उसको वॉश करना, लाइक यू नो, इट्स अ साइकोलॉजिकल थिंग. अच्छा करो, व्हेन योर सोल इज क्लियर, योर कॉन्शियस इज क्लियर, नथिंग, एवरीथिंग गुड विल हैपन. अगर मैं अपनी बात करूं, जब 2007 में मैं वो रिलेशनशिप से बाहर आई, माय दैट टाइम बॉयफ्रेंड वाज एक्स बॉयफ्रेंड नाउ, was doing so well. He was making movies like with Mr. Bachchan, with the names, right? And he had everything going. And uske baad he announced a couple of films with Aishwarya. Then there was another one with Mr. Bachchan, है ना? And I was in that struggling phase, क्योंकि मैं अपने peak से जब गिरी, उसके बाद मुझे काम नहीं मिला. Even though I was trying, but with a name like Flora, क्योंकि वो न्यूज़ में इतना छपा, तो लोग मुझे बोलते थे कि no, you have too much baggage, we can't cast you. Mr. Mrs. Khanna एक सोहेल खान की फिल्म है. Yes, I know. I was almost finalized, and then the director had this message sent through कि, you know, because you have baggage, we cannot sign you. Oh. And जो stylist थे, he had pushed my name for that film. He said कि I fought with them to say कि भाई उसकी क्या गलती, that somebody beat her up. But you know how it was, and I was struggling. I was a struggling actor. That's the truth in Hindi. तो struggling actors की बात लोग नहीं मानते compared to a person who was doing so well. उस टाइम से आज तक my life has evolved. I have done the best work even when I thought एक certain age के बाद actresses को काम नहीं मिलेगा. भगवान ने दरवाजे खोले हैं, काम आया है, and I've been very fortunate कि मैं वो फिल्मों की भी पार्ट रही हूँ. And this person, उन्होंने कितने अनाउंसमेंट्स कर लिए, फिल्म आज तक बनी ही नहीं है, टेक ऑफ ही नहीं की है. So I have seen it in my life and such a big example. And मुझे मालूम है कि जब वो अनाउंसमेंट्स हुई and जब मेरा टाइम उस टाइम खराबी चल रहा था, I used to think भगवान है क्या? How is it that a person जिसने बुरा किया है, अपनी वाइफ के साथ भी किया, मेरे साथ भी किया, और भी कितनी सारी लड़कियों को बुरा ही करता जा रहा है, उसको तो भगवान आप देते जा रहे हो. हम लोग जो aren't you listening, aren't you there, ये क्या है? And I actually stopped believing in God totally. कर्मा वर्मा ममा कुछ नहीं है, there is nothing. ठीक है. And now 19-20 years later I believe कि नहीं, sometimes it's slow. बट सोचो ना, आई विल हैव क्या मैटर करता है कि जब आप अपनी लाइफ के एंड में हो, आप खुश हो, आप सक्सेसफुल हो, जो स्ट्रगल्स हैं वो पहले देखें इंसान, वो ज़्यादा बेटर है देन टू सी लेटर इन लाइफ. सो व्हेन आई थिंक अबाउट दैट, आई फील नहीं, भगवान है, थोड़ा स्लो देता है, थोड़ा टेस्ट करता है कि भाई इवन इन योर वर्स्ट मोमेंट्स विल यू ब्रेक, विल यू बिकम ईविल, विल यू. एंड आई हैव सीन दैट विद अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन. मेरी क्लासमेट होती थी अमृतसर में, 1 year I was there. She married someone who was very very rich and बिल्कुल जैसे नॉवल का होता है ना, नॉवल में आप पढ़ते हैं, फेरी टेल, दैट काइंड ऑफ वेडिंग शी हैड. और उसके बाद इट डिडंट लास्ट. शी वेंट थ्रू टेरिबल टाइम. आई थिंक आई कैन रिलेट, बिकॉज जब आप एक नार्सिसिस्ट के साथ होते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो शायद मैं भी, अगर मेरी कोई फ्रेंड मुझे बोलती है एंड आई वुड नॉट हैव एक्सपीरियंस्ड इट, मैं बोलती अरे यार ऐसा थोड़ी ना होता है, तो फिल्मों में बड़ा चढ़ा के बोलते हैं या किताबों में लिखते हैं, पर नहीं ऐसा. What do they say? Truth is stranger than fiction. Truth is stranger than fiction. Truth is far more stranger than fiction. Yes. So there are things that you can't believe कि human mind is capable. Anybody is capable of that, but ऐसा होता है. So when she came out of that, I didn't see her become a better person. She went through bad times, and maybe she didn't have the kind of support that I had. You know, she changed into a person that I would not
like to call my friend. क्योंकि जब मेरा टाइम बुरा चल रहा था and she met my mom, she took money from mom कि मैं पूजा करा दूंगी, ये करा दूंगी, फ्लोरा को वापस ले जाऊंगी. बट वो ना पूजा कभी हुई ना कुछ हुआ. सो आई लॉस्ट अ फ्रेंड, आई लॉस्ट द मनी. मनी इज फाइन, यू कैन ऑलवेज गेट दैट बैक, बट द फ्रेंडशिप इन द ट्रस्ट, या, एंड योर बेस्ट फ्रेंड. फिर मुझे यही लगता है कि हाउ यू, दैट डिफिकल्ट टाइम इज व्हेन गॉड इज जजिंग यू कि मैं तुम्हें आगे दूंगा या नहीं दूंगा, इज हाउ यू कंडक्ट योर सेल्फ ड्यूरिंग दैट टेस्टिंग फेज. तो ऑल दोस कंट्रोवर्सीज जिसमें आप रही, जिसकी वजह से लोगों ने कई सारी चीज़ें पढ़ी, ओपिनियंस फॉर्म किए, जिसकी वजह से इंडस्ट्री में थोड़ा सा आपके लिए एक बैकलैश आया, जहां आपका एक फेज आया जहां पीपल वर नॉट एक्सेप्टिंग यू, उसका स्पिरिचुअल निचोड़ क्या निकला व्हाइल गोइंग थ्रू? आपने कहा कि दैट यू क्वेश्चन गॉड एंड यू क्वेश्चन एग्जिस्टेंस, एंड इवेंचुअली टुडे यू डू फील दैट नो, एक एनर्जी है, एनर्जी तब भी थी, संभाल रही थी आपको. बट व्हाइल दैट एक्सपीरियंस वाज हैपनिंग, how did you come out of it? So God's been kind, सिर्फ उतना ही बोल सकती हूँ. I remember when जो मेरा डोमेस्टिक वायलेंस वाला केस था, so क्या होता है, लोगों को लॉ पता नहीं है, हम वही बिलीव करते हैं जो हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, विच इज़ व्हाट हैपेंड विद मी, क्योंकि लोगों ने वही पढ़ा जो पेपर में था. I couldn't afford PR that time, so what they read is what they believed. फिर मैंने एक कोर्ट केस करना ही पड़ा because there were a lot of threats and all. तो 2 केस होते हैं, एक सिविल होता है, एक क्रिमिनल होता है. क्रिमिनल जिसमें चार्जशीट बनती है, और एक डोमेस्टिक वायलेंस इज अ सिविल केस जहाँ मैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए एक केस करती हूँ. वो केस 7 साल चला. मैं 7 साल हर डेट पे कोर्ट गई, कभी जज नहीं आया, कभी सामने वाली पार्टी नहीं आई. सामने वाली पार्टी को तो नहीं आए तो कोई भी, इट्स ओके, देयर सम फाइन, 500 रुपीज़ यू हैव टू पे, बेल कैंसिल हो जाती है, क्या समथिंग, बेल नहीं, वारंट कैंसिल हो जाता है, ठीक है, समथिंग लाइक दैट. सो बट दो 7 years देयर वाज लॉट ऑफ कैरेक्टर असैसिनेशन. दे ट्राई एंड प्रूव कि आप तो बकवास कर रहे हो, आप स्ट्रगलर हो, आप पैसे के लिए कर रहे हो, आप जो भी. एंड इन माई हेड सिर्फ एक बात चलती थी कि नो कोर्ट, नो नथिंग. उस रात सिर्फ 2 लोग थे, हिम एंड मी एंड गॉड, 3 लोग, है ना. तो वो जो भी बोल ले, मैं जो भी बोलूँ, एक इंसान थर्ड पार्टी है जिसको पता है कि भाई क्या हुआ. And today they're trying to prove that I'm wrong. And I used to react. My lawyer used to tell me, आपने रिएक्ट नहीं करना है, आपने सिर्फ येस बोलना है, नो बोलना है, क्योंकि जज चेंज हो जाते हैं. सो दे जस्ट रीड व्हाट पुराना जज हैज रिटन. एंड ही यूज्ड टू से कि सामने वाले का इंटेंशन ही है कि आपको या तो गुस्सा आ जाए या आपको रोना आ जाए. तो माइंड हिल जाता है, फिर आप जो भी आंसर दोगे आप क्लियर नहीं सोच रहे हो. हाँ, ये सही बात है, बट व्हेन द वे दे आस्क यू इज सो सोल क्रशिंग कि आई एंडेड अप रिएक्टिंग एवरी टाइम आई वेंट टू गॉड. तो वो जजमेंट आने से पहले वी हैड ऑलमोस्ट, देयर वाज नो वे वी वुड हैव लॉस्ट दैट केस, बट हमारे केस से पहले एक और सिमिलर केस था जो सुप्रीम कोर्ट में दे सेड बिकॉज दिस लेडी इज नॉट दिस पर्सन's वाइफ, सो शी डज नॉट गेट अ प्रोटेक्शन अंडर द DV केस. सो वो जजमेंट मेरे केस में यूज़ की गई जस्ट बिकॉज आई वॉज नॉट हिज वाइफ, एंड आई लॉस्ट द DV केस. सो ही वेंट अराउंड सेइंग, सी देयर वाज नो केस, आई एम एक्विटेड. एक्विटल होता है चार्जशीट केस में, इसमें सिविल केस में एक्विटल नहीं होता है, उसमें सिर्फ एक एप्लीकेशन डिसमिस हो जाती है. एंड दैट डे आई एक्चुअली, because he went and did his PR, people believed. I didn't want to get out of bed. I was like, भगवान यहीं से मुझे उठा लो, because how do I जब मैं लोगों को मिल रही हूँ ना, if I'm looking in their eyes, तो मुझे लग रहा है कि वो सोच रहे हैं कि मैंने किया है, मैं झूठी हूँ, मैं ये हूँ, जो मुझे कोर्ट में बोला जा रहा है, वो मैं सोच रही हूँ कि ये सोच रहे हैं. वो सोच रहे हैं कि नहीं, शायद नहीं सोच रहे, पर मेरा दिमाग आपके माइंड में जज कर रहे हैं, ऐसा सोच रहे हैं आपके बारे में. और मुझे लगता था मैं क्यों ही ट्राई कर रही हूँ, लोगों से मिल रही हूँ, जब उन्होंने ना ही बोलना है एंड में, लेट मी नॉट गो.
एंड अगेन विद अ नेम लाइक फ्लोरा आप छुप नहीं सकते, आप ये नहीं बोल सकते ये वाली फ्लोरा वो मैं नहीं हूँ, वो कोई और है. सो माई मदर यूज्ड टू से कि देखो हमारी एक ही डॉटर है, तुमने क्या करना है, डू यू हैव एनी स्ट्रेस, खाना नहीं मिलेगा, घर नहीं है, कुछ नहीं है ना, जाओ अपना ऑडिशन दो, होगा नहीं होगा भगवान के हाथ में है. एंड आई बिलीव जब स्कूल में होते थे तो एक फेरी टेल थी, हैंसल एंड ग्रेटल की स्टोरी है ना, कि वो घर पहुंचने के लिए वो छोटे छोटे ब्रेड क्रम्स हैंसल एंड ग्रेटल में था. एंड आई बिलीव दैट इज ट्रू, बिकॉज अगर भगवान आपको थोड़ा 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 करके भी दे रहा है, वो नहीं भी दे सकता ना चाहे तो, वो थोड़ा थोड़ा भी दे रहा है ना, किसी रीजन से दे रहा है, वो रास्ता मार्क कर रहा है. सेम हैंसल एंड ग्रेटल स्टोरी. एंड अगेन गोइंग बैक टू जब हम एक्टिंग इंस्टीट्यूट में थे, सो एक दो लड़के आए थे पंजाब से, बहुत अमेजिंग एक्टर्स, लाइक हम कुछ नहीं है उनके सामने. दे स्टेड हियर 6 months. वो जिनके घर रुके उनके रिलेटिव्स थे, उन्होंने 3 दिन के अंदर इन लोगों का सामान घर के बाहर रख दिया कि देखो ये बॉम्बे है, यहाँ पे तुम बैठोगे, खाओगे, 3-4 महीने का कोर्स करोगे एंड वी विल फीड यू, ऐसा नहीं होने वाला, आपको काम करना पड़ेगा, घर में सब काम करते हैं. सो दे स्टेड इन अ गुरुद्वारा, सेवा करते थे वहाँ पे, एंड एक्टिंग इंस्टीट्यूट, सो पैशनेट अबाउट एक्टिंग. एंड वो कोर्स खत्म होने के बाद 1 साल वो यहाँ थे, दे केप्ट ऑन ट्राइंग, नहीं हुआ तो नहीं हुआ. एंड आई एम सेइंग ग्रेट एक्टर्स, इसलिए नहीं हुआ क्योंकि शायद भगवान ने उनके लिए कुछ और इससे ज्यादा अच्छा लिखा हुआ था. हाँ, एंड दे वर, गॉड इज लाइक हेलो दिस इज नॉट फॉर यू, गो देयर. एंड मेरे लिए उल्टा था कि जब मैं ये बार बार अपने आप को बोल रही हूँ नहीं हो गया खत्म, मुझे नहीं जाना, एंड दैट लिटिल 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 दैट केप्ट हैपनिंग. एक और बहुत मुझे ये लगता है अमेजिंग बात है कि ये तो था, एडवर्टाइजमेंट्स होती रही तो मुझे लगता था चलो थोड़ा थोड़ा काम आ रहा है. फिर एक फेज आया जब सब कुछ फाइनल तक जाता है, शॉर्ट लिस्ट होता है, फाइनल नहीं हो रहा है. 6-7 मे बी 8 महीना ऐसा चला. फिर मैंने मामा को बोला, मैंने कहा मामा देखो टीवी में हो नहीं रहा है, मूवीज में ये छोटा छोटा पार्ट मिलता है, मज़ा नहीं आता, एड्स में भी अभी इतना टाइम हो गया, फाइनल शॉर्ट लिस्ट तक होता है एंड देन इट्स नॉट हैपनिंग, मे बी इट्स ओवर, मे बी आई शुड नॉट गो. एंड आई सो थैंक गॉड, बिकॉज ये जब सब चल रहा है मेरे माइंड में, वो 8 महीना भी मैंने देखा. सडनली एक फ़ोन आया फ्रॉम यू नो वीरेंद्र सर, राइट, उनकी टीम से कि हम एक ऑडिशन लेना चाहते हैं. किस चीज़ का? वेब सीरीज. ये क्या होता है? हाँ, कहाँ दिखाएंगे? बात है जब ये सारे प्लेटफॉर्म्स आए भी नहीं थे और देयर वाज नो बिग बज़ अबाउट वेब सीरीज. ट्रू. सो कहाँ दिखाएंगे? फोन पे देख सकते हैं. ये क्या है, कैसे शूट करेंगे? फोन पे शूट करेंगे? नहीं नहीं, नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल है, बट सिर्फ फोन पे देख सकते हैं. ठीक है, कहानी क्या है? मेड बनेगा. मैंने कहा ये तो मैंने कभी किया ही नहीं है. सो stories was so, and that time only I also auditioned for Inside Edge. It was called something else. It was called Power Play or something. And I was supposed to meet the director. मैं 3 बार उनके ऑफिस गई, मैं उनसे मिल नहीं पाई. 4th time when I called them, they said that series is not taking off. It was with somebody else who was supposed to make it, and then it went to Farhan Akhtar's production house, and they made it. So even with that series, I've had a, you know, where I was being called and that's not happening and all of that. So जब ये struggle मेरा चल रहा है, I feel that God opened this, third door, which is of web series. And उस time जो खाली actors थे वो हम थे, बाकी सब बहुत busy थे. And I feel very very, I'm grateful to God कि जहाँ रास्ते नहीं भी होते ना, just believe, like don't give up. तुम्हारा काम है just to show up, be present. बाकी जो होना है नहीं होना है, present होके भी कई बार नहीं होता है. And I'm saying this because कुछ ऐसे actors को भी मैं मिली who used to tell me हम audition कभी नहीं देते. We don't like giving auditions. And I used to think, but why? जब आप एक audition में जाते हो, it's like a classroom. एक स्क्रिप्ट है या एक एग्जाम पेपर है, सारे स्टूडेंट्स अलग अलग इसको अटेम्प्ट करेंगे, सबका दिमाग अलग चलता है, कुछ ऐड करेगा, कुछ दूसरे को देखेगा, राइट, एंड यू लर्न लाइक नोबडीज बिजनेस. सो आई यूज्ड टू लुक एट दिस पर्सन, ये इंसान जो मुझे बोलता था कि मैं तो कभी ऑडिशन नहीं देता, एंड ही डिड अ फ्यू फिल्म्स
and I used to always think, so stupid. I wish he gave more auditions, he might be doing more work. उस टाइम जितने भी auditions दिए, बहुत सारे लोगों को आप रोज देखते थे, they became friends, and I learnt a lot from that auditioning phase. That was my actually training. And then, I mean, you were I remember Made in India, the show, and Veeru sir, Virendra Shahne Yes. sir, he was one of the first persons to adapt to the concept or a format of web series in Yes. India. And जब ये सारे platforms आज देखते हैं, Netflix, Amazon, Zee, Sony, etc., they were still yet to become so Correct. popular or yet to come even, I think. And you were the first lead actress who took on a role of a web series, amongst the Yeah. first ones. And you set the kind of a trend there. And then, of course, these platforms came and changed the whole game. Yeah. And आपका जो अगर इसको second phase भी कहें, in a way, after in between the phase of the trauma that you went, the second phase is far bigger than the first one. Stree, Yeah. the OG Stree, आप है उसमें. You know what happened in Stree? हाँ. So जब मुझे फर्स्ट टाइम फोन आया कास्टिंग वाले का कि एक फिल्म है, राजकुमार राव हीरो है, श्रद्धा कपूर है, 1 days रोल है, एंड आपको एक ऑडिशन करना चाहते हैं फॉर दैट पार्ट. ऐसे मुझे नहीं करना. बोला राजकुमार राव है. मैंने कहा डजेंट मैटर, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द एक्टर, इट्स मेरे को एक दिन का पार्ट नहीं करना. अगर थोड़ा ज़्यादा होता तो मैं कर लेती, बिकॉज अगेन दैट टाइम वेब सीरीज वॉज हैपनिंग बट मूवीज वॉज छोटे छोटा पार्ट्स. ऐसे मैं 2-3 दिन का होगा मैं कर लूँगी, एक दिन का मुझे नहीं करना. तो ही सेड ओके. फिर नेक्स्ट डे उसका दोबारा फ़ोन आया. अगेन डेस्टिनी, लक, गॉड्स डिवाइन इंटरवेंशन. क्योंकि कास्टिंग वाले जनरली एक टाइम पे एक ही चीज़ करते हैं. एंड दिस गाय, वो भी नया नया शुरू हुआ था उसका, एंड ही वॉज डूइंग कास्टिंग फॉर अ मूवी एंड फॉर एन एड. सो नेक्स्ट टाइम ही कॉल मी, ही सेड एड का ऑडिशन है, आप आ जाओ. ठीक है. मैं गई एंड आई एम वेटिंग. मेरे से पहले 2 लोग हैं जिनका ऑडिशन चल रहा है, एंड इट्स नॉट फॉर द एड, इट इज़ फॉर समथिंग एल्स. और मुझे नहीं पता वो क्या है. बट दैट गर्ल जिसने जो पार्ट मुझे ऑफर कर रहे थे वो, एंड एक और लेडी थी जो मदर के रोल के लिए शी वॉज ऑडिशनिंग. तो जब मेरी बारी आई, मैंने बोला ये कौन से पार्ट, क्या ऑडिशन करके गए हैं, बिकॉज आई वुड वॉन्ट टू डू इट. इसे ये वही फिल्म है जिसके लिए तुम मना कर रहे हो, 1 days पार्ट. आई सेड रियली आई वॉन्ट टू डू इट. तो ही सेज पर तुम्हारे लिए रोल बढ़ेगा नहीं, इट इज गोइंग टू बी 1 days वर्क ओनली. आई सेड कोई बात नहीं. मैं कितने 99.9% चांस है कि मैं शायद वहाँ होती नहीं उस दिन, क्योंकि मैं मना कर चुकी थी. एंड ही वॉज डूइंग एन एड. आई वेंट देयर, आई सॉ पीपल. हो सकता था कि वो करके जा चुके होते. आई सॉ देम, एंड समथिंग अबाउट द डायलॉग, द सिचुएशन एंड द वे दोज गाइज डिड इट. I am telling him after saying no, I'm saying I want to audition for this part. और audition किया मैंने. फिर मैंने 20 दिन उनसे I didn't hear from them. और मैं दिमाग में सोचूं ये तो मैंने अपनी इंसल्ट करा दी. मैं ना देती तो अच्छा था, ये तो अभी they're not getting back to me. After 20 days I get a call saying कि वो जो फिल्म थी उसमें एक और पार्ट है. एंड सडनली माई माइंड सेज मैंने एक दिन के लिए ऑडिशन दिया है, अब ये आधे दिन का कोई रोल मुझे देंगे. क्योंकि जब आपके साथ बुरा होता है ना, यू नेगेटिव ट्रेन योर माइंड कि अच्छा ये हो रहा है तो ये तो हो ही गया ही नहीं, ये तो मुझे पता है कि मेरे साथ होता ही नहीं है. एंड ही सेड एक और पार्ट है, इट्स द टाइटल रोल, डायलॉग नहीं है पर. आई सेड मैं करूँगी. बिकॉज लोगों ने मुझसे पूछा तुमने क्यों की, डायलॉग नहीं था, शक्ल नहीं देखी. आई सेड मेरे पास रीज़न नहीं है. That script pulled me to that audition room, and what I saw, I was drawn to it. ना बोल के मैं ही हाँ बोल रही हूँ. And वो छोटा पार्ट से भगवान ने वो दूसरा पार्ट दिया. टाइटल रोल स्त्री, आप स्त्री हैं, मतलब people will know you. Flora Saini was the स्त्री. And the message of that film ना, वो स्त्री है, वो प्यार और इज्जत की भूखी है, तुम उसे प्यार और इज्जत दो, वो तुम्हारी रक्षा करेगा. I said this is my life story. तो वो चुड़ैल भी होके इतनी डिफरेंट स्क्रिप्ट थी. तो स्त्री तो मैं मानती हूँ कि it was written for me. And I was pulled to it after having said no. तो and ऐसा ये जो छोटी छोटी मैजिक है ना, ये मैंने लाइफ में काफ़ी बार नोटिस किया. So when I say कि there is somebody looking over me and I don't know who it is, I believe that. And इससे मुझे आपकी भी एक बात याद आई.
जब ये मे क्वीन कॉन्टेस्ट हुआ था ना दिल्ली वाला, एंड आई वॉज द फर्स्ट रनर्स अप. आई रिमेम्बर उससे एक रात पहले देर वॉज अ लाइक अ रिहर्सल. सो रिहर्सल में देर इज नो लाइक हम सबको वो पोजिशनिंग बता रहे हैं ऑल ऑफ दैट, एंड दे सेड कि अगर टॉप 5 में आप आएंगे तो रैंडमली दे कॉल्ड 5 नेम्स, एंड I'm standing there पीछे, and in my head suddenly there's a voice that's saying that she's going to call me, and she called my name, and this is rehearsal one day before, and सामने there's a moon, उस दिन full moon था, and I can see the moon and I'm looking at the moon, and जब वो then she said ये top 5 से अगर हम आपके नाम बुलाएंगे top 3 ऐसा first runners up winner ये वो, and she's for the second runners up she called my name, and पता नहीं क्यों वो image ना fixed है मेरे दिमाग में. I'm looking at that moon that one night one previous day, क्या दिमाग में चल रहा मुझे नहीं पता, and मैं ये सोच भी रही हूँ पता नहीं क्यों this moon I can't get my eyes off the moon. Next day जब वो really में live चल रहा है मेरी life में, top 5 में से they have to call out the name, I am seeing the moon again because moon उसी direction में है, right? And I just knew it कि मेरा नाम बोलने वाला है, मेरा नाम बोलने वाला है. And she said, and मैंने उसका like that time there was no bad incident, कुछ मेरे लाइफ में ऐसा हुआ नहीं था कि मैं बोल सकूं oh you know this is just one odd thing that had happened. Then I remember that night जब the last violent night of my life, and I know this person would have killed me that night.